टेबल लिख लो। So first we see what is the resistance and why it is used. So as we know, the flip-flop can store only one bit of data. Either it can be a 0 or it can be a 1. So it can be named as 1-bit register. So it's a single bit register. It's also known as single bit register. So a register is a set of flip-flop. So what you can say, if it is a 4 flip-flop, then it is able to store 4-bit data. So 4-bit shift registers will be there to store 4-bit data. So shifting process is used for either move from left to right or right to left. So there will be two processes. So we are seeing from left to right movement. Then in the last we can see the universal shift register which can move from left to right or right to left, both direction. The storage capacity of the registers depends on the number of flip-flops you are used, and it can retain zeros and one in each flip-flop. Loading of registers means you want to load some data in your shift registers. Like if it is a D flip-flop, and if you are having a 4-bit shift register and you want to load a data 1011, then that is called as loading. If you want to just shift that data, so what will happen after 1011? The data will be shifted, so it will be 0101. Then if you again shift, it will be 010010. So in this way your shifting process will be done. Loading may be done serially or parallelly. So there are 4 types of shift registers we are going to see. So in serial loading, the data is transferred into register in the serial form. So one data will be loaded at a time. In parallel, we are loading all the data at a time. अगर आपके 4 shift registers, 4 flip flops है, चारों में data एक साथ load होगा. So that is known as parallel. If you are having serial, you are loading in the first flip flop, and the data will be moved in the next flip flop using shifting process. In the parallel loading, the data will be transferred into the register. Parallel means all that flip-flops will be triggered into new states at the same time. So there are 4 types of just forget about this thing. We can classify the shift register in 4 types. So what are the various 4 types? Just I will name all of them. So first shift register is serial in, serial out. Serial in, serial out shift register. This will be your first shift register. Then the second shift register will be serial in, parallel out. Third will be parallel in, serial out shift register. And fourth one is parallel in, parallel out shift register. So shift registers can be classified in 4 categories. First one is serial in, serial out. Second one is serial in, parallel out. And third one is parallel in, parallel out. Fourth one is parallel in, serial out.
Okay, so we will start with the first one, serial in, serial out shift register. So this is the first shift register. So whenever you are drawing the shift registers, it will always use D flip flop. So you are never going to use any other flip flop. So you have to remember the D flip flop only. So first we will remember. First we will try to recognize the flip flop. So D flip flop can be drawn in this fashion. So this is Q, this is Q bar, this is D, this is clock. Okay, so it's a symbol of D flip flop. Now I have told you that shift register flip flops can be two types of flip flops. One is level triggered and second one is edge triggered. So how you can recognize this is a level triggered or edge triggered? कैसे पता चलेगा इसको देख के फिगर को? This is edge triggered. And positive edge triggered. So in edge triggered, we are having two different types. First one is positive. Second one is negative. So if you draw the symbol, in this way, D, enable, Q, and Q bar. So this is level triggered. So this will be missing. So this part will be missing. This is positive edge triggered. So how to recognize the negative edge triggered flip flop? So the negative edge triggered flip flop will look like this one. So this will be D, this will be clock, this will be Q, this will be Q bar. So you will have a bubble over there. So in front of clock, you will have a bubble. So this is negative edge trigger. Is it clear up to this? How the symbols, how the different symbols are there for the different types of flip flops? यहाँ तक clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So symbols में mistake नहीं होनी चाहिए exam. Symbols में mistake हुई तो you will get a 0. So now we will see what is the difference. आप तो ठीक है, चलो मैंने बताया एक बार, लेकिन फिर भी एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ. पहले हम स्टेट टेबल बना लेते हैं. So D can be 0, it can be 1. For 0, it will be no reset, and 1, it will be set. ऐसा ही था state table? Yes, sir. Yes. Okay, so this is your state table. Now we will see for level triggered flip flop.
FF stands for flip flop. Okay, so first we will see the waveform of level triggered flip flop. तो उसमें और कैसे डिफरेंस है वो पहले देखेंगे. So this is Q, this is Q bar, this is D, and this is clock, और enable भी कह सकते हो, दोनों चलता है. क्लॉक कैसा वेवफॉर्म होता है? क्या सर? क्लॉक कैसा वेवफॉर्म होता है? स्क्वायर वेवफॉर्म होता है हमेशा. So this is your clock. ओके, यहाँ तक क्लियर है. हमेशा क्लॉक ऐसी ही होगी, इसके अलावा नहीं होती है क्लॉक, कभी अलग तरीके की नहीं होती. स्क्वायर वेव के अलावा आप बोलो कि रेक्टेंगुलर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, वैसा नहीं. क्लॉक हमेशा स्क्वायर वेव होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. सो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है नॉर्मली. तो ये होगा. और ये सिक्वेंशियल लॉजिक का हर्ट होता है, बिना क्लॉक के सिक्वेंशियल लॉजिक वर्क नहीं कर सकता. नाउ आई विल ड्रॉ द डी इनपुट. Okay, so this is my D input. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? यस सर. सर इनपुट के फ्रीक्वेंसी क्लॉक के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ऐसा जरूरी क्या? नहीं. ओके, अब जो आउटपुट चेंज होगा, अब आउटपुट बनाना है मेरे को क्यू. तो क्यू इनिशियली मैंने एज्यूम कर लिया कि 0 था. ओके, तो इनिशियली इट इज 0, क्योंकि इनिशियली फ्लिप फ्लॉप को कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा कि 0 है या आउटपुट 1 है. उसके बिना तो मैं आगे नहीं कर सकता. इतना क्लियर है? हेलो. यस सर. Yes, sir. यस सर.
Okay. So sorry for disturbance. ये क्या कर रहे हैं भाई? So now we have assumed d equals to 0 here. Now here q equals to 0. So this is q. So initially we have assumed that q is 0. Here d is equals to 0. So if d is equal to 0, what will be the state? Reset. So here it will be reset. Now I will represent R for reset, and I will write S for set. So here up to here it will be reset. Now clock is 1. So if clock is 1 and your input is changing, so input is changing from 0 to 1. So what it will be, what it will be there? It will be also set. So from here to here it will be set. Now for 0, or if clock is 0, the flip-flop will be in storage mode. So whatever the previous output will be there, that will retain its value. So ये value यहाँ से यहाँ तक continue करेगा. So it will be always 1. Now again here you need to check what is the input. So here the D is 0. So here it will become 0. Now it will continue to be 0 within this cycle because your clock is 1. So this will be 0. Now here D is 0, so it will be 0. Here it will be 0. Now here the clock is 0. So if clock is 0, that means it will be in storage mode. So here it will continue to be 0. It will not go for 1. Now here it will check. Here D is equals to 1. Now if D is equal to 1, so it will be in set mode. So it will move from 0 to 1 and it will continue to be 1. So it will be in set mode. तो यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ पर इनपुट चेंज हो रहा है. सो हियर इफ यू फाइंड द इनपुट इज चेंजिंग इन बिटवीन द क्लॉक पल्स, सो दैट इज नोन एज लेवल ट्रिगर्ड. कि जब 1 होगा जितने ड्यूरेशन के लिए, उसके बीच में अगर इनपुट में कोई चेंज होता है तो आउटपुट में चेंज हो, तो उसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. नाउ इफ यू सी द एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, हाउ इट्स लुक्स लाइक, वो तो पता है हमको फिगर. सो इफ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द वेव फॉर्म, so in this clock pulses we are having two types of edges. This is positive edge. So we are operating on positive edge. So we are working on positive edge trigger. So your flip flop is positive edge trigger. So now your data input is like this. Now in this circuit, you need not to bother about all the period of clock pulse. आपको पूरे पीरियड की देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव एज को देखने की जरूरत है. तो जहां जहां पे पॉजिटिव आ रहा है, एज आ रहे हैं, वहां पे मार्क करके लाइन नीचे खींच लो. तो पहले यहाँ पे मार्क कर लो पॉजिटिव एज ये है, ये है, ये आपका डी इनपुट है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं Q 0 था. यहाँ पे D क्या है, 0. 0 मीन्स इट विल बी इन रीसेट, तो इट विल कंटिन्यू दैट मोड. अब इसके बीच में कोई चेंज आ रहा हो इस ड्यूरेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जब पॉजिटिव एज में जो चेंज इनपुट है उसके हिसाब से आउटपुट आएगा. यहाँ पे D क्या है, 1. सो आउटपुट क्या होगा, सेट. सो इट विल मूव टू 1 एंड इट विल बी सेट. यहाँ पे D क्या है, 0. सो इट विल बी रीसेट. यहाँ पे D क्या है, सेट 1. सो D विल बी सेट. सो ये सेट हो जाए. हेलो, ये सर. हाँ सर, लेक्चर ले रहा हूँ. Yes, sir.
Okay, so if you see the previous केस में क्या था कि जब तक इनपुट 1 है उसके बीच में जब तक क्लॉक 1 है उसके बीच में अगर इनपुट चेंज हो तो आपका आउटपुट चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 था तो पहले रीसेट हो गया, फिर यहाँ 0 से 1 गया और क्लॉक 1 था तो सेट भी हो गया। तो सेट होके जब 0 रहेगा तब तो टेंशन ही नहीं लेना, जब 0 है तब तो स्टोरेज मोड में है, तो जो पिछला वो वैल्यू है वही कंटिन्यू वो स्टोर करके रखेगा। तो अगर 0 है तो 0 स्टोर करके रखेगा और 1 है तो 1 स्टोर करके रखेगा। देखो यहाँ पे भी स्टोरेज मोड में है, तो यहाँ पर भी पिछला वैल्यू स्टोर करके रखा है। लेकिन अब इससे अगर लेवल की जगह एज में जाओगे तो क्या फर्क होगा, जब भी एज आएगी तभी चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर 0 एज्यूम किया था और यहाँ पर फिर से क्लॉक के टाइम इनपुट 0 है, तो ये किस मोड में चला जाएगा, रीसेट। अब ये रीसेट कंटिन्यू रहेगा जब तक नेक्स्ट एज नहीं आती, जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज नहीं आती तब तक वो कंटिन्यू सेम वैल्यू पर होल्ड रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा कि इनपुट क्या है, यहाँ पे D1 है तो ये क्या कर देगा, इसको सेट। नाउ फिर अगेन वो नेक्स्ट एज तक वेट करेगा, यहाँ पर क्या है, D इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा रीसेट। फिर यहाँ पर क्लॉक पर D इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट। तो ये इस तरीके से ऑपरेट करता है, ये दोनों में ये डिफरेंस है। इसके अलावा हो सकता है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी हो सकता है। सो नेगेटिव एज यहाँ पर चेक करना है आपको। सो यहाँ पर चेक करो तो क्या वैल्यू होगी, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। तो पहले 0 यहाँ तक कंटिन्यू रहा और फिर यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एज में 0 है तो फिर रीसेट हो जाएगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा। फिर यहाँ नेगेटिव एज है फिर रीसेट होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव एज का आउटपुट और ये हो गया नेगेटिव एज का आउटपुट। तो पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगर सिंपल है, लेकिन लेवल ट्रिगर डिफिकल्ट है। लेवल ट्रिगर डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि आपको इनपुट जो है जब तक क्लॉक 1 है उसके ड्यूरेशन में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला में वो इसमें क्लॉक अगर वो 0 स्टेट में रहेगा तो वो कोई फर्क नहीं ना पड़ता है। 0 स्टेट में तो वो स्टोरेज मोड में रहेगा, 0 Yes. चेक ही नहीं करना। ये सर वो जैसे वो पिछले वाला में उसमें फर्क पड़ा था, इस हाँ। मोड में पहले था उसी मोड में वो कंटिन्यू चलता रहता था, बट हाँ। इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं, वो अगर वो 0 स्टेट में है क्लॉक। हाँ, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर। आप पहला फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, पहला शिफ्ट रजिस्टर लेते हैं। तो पहला शिफ्ट रजिस्टर कौन सा था, सीरियल इन सीरियल आउट। अभी पहले तो कितने बिट का है वो सोचना पड़ेगा आपको, तो मैं बना रहा हूं 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर। फोर बिट का शिफ्ट रजिस्टर मतलब होगा 4 फ्लिप फ्लॉप्स। So this is D, this is Q। अब ये Q से Q कनेक्टेड होगा, Q से नेक्स्ट D में ये Q, ये D, ये Q, ये D, ये Q। क्लॉक सबको कॉमन। यहां से डेटा इन होगा, डेटा इन, यहां से डेटा आउट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका क्लॉक। सो इफ यू सी द शिफ्ट रजिस्टर्स, ये होते हैं 4 जो पढ़े हमने।
सो पहला सीरियल शिफ्ट रजिस्टर, इसको दिखाते इस तरीके से, चार, ये जो चार ब्लॉक दिख रहे हैं वो चारों फ्लिप फ्लॉप्स है। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके सर। So each block represents one flip flop. So this is first flop, this is second flop, this is third flop, this is fourth flop. So यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ से डेटा मूव करेगा और यहाँ से डेटा आउट जाएगा। तो ये सीरियल इनपुट और आउटपुट का डेटा मूवमेंट होता है। So यहाँ पे ऑपरेशन में देखेंगे कैसा होगा। So this is your clock pulse, say for example. कौन सा एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो डेटा पॉजिटिव एज पे चेंज होगा। सो 4 से 5 क्लॉक तो बनाना, नहीं तो आपका आउटपुट दिखेगा नहीं कि बाहर आ रहा है। 4 से ज्यादा क्लॉक होगी तो ही दिखेगा आउटपुट बाहर आ रहा है। सो ये पॉजिटिव एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलो, डेटा इन मैंने दिया 1, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एज्यूम कर लिया 0 है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया 0 है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया 0 है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया 0 है। पहली क्लॉक पल्स के बाद क्या होगा, ये सपोज कर लो Q1 है, Q3 है, Q2 है, Q1 है और ये Q0 है। Q3 की वैल्यू क्या होगी? 1। हाँ, क्योंकि पहला फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, सेट। D1 है तो ये हो जाएगा सेट। सेट होते ही क्या होगा, इसकी नई वैल्यू 1। ये 1 यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये 0 यहाँ ट्रांसफर होगा, ये 0 यहाँ ट्रांसफर होगा और ये 0 आउटपुट में ट्रांसफर होगा। तो अब नया डेटा क्या आया, 1 0 0 0। अब डेटा इनपुट सपोज कर लेता हूं 0 है, दूसरा इंक ले लेता हूं तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट डेटा 0 है, तो अब क्या होगा, 0 ये DQ3 0 जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर ये 1 यहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है तो डेटा जो ट्रांसफर है वैसे ही होगा। फिर ये 0 यहाँ ट्रांसफर होगा और ये 0 यहाँ ट्रांसफर होगा। तो अब क्या आया, 0 1 0 0। अब नेक्स्ट डेटा सपोज कर लो कि 1 है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ 1 ट्रांसफर होगा, 1 0 1 0। ये 0 यहाँ ट्रांसफर होगा, 1 0 1 ये 1 यहाँ ट्रांसफर होगा और ये 0 यहाँ ट्रांसफर होगा। तो क्या आया, 1 0 1 0। सो 1 0 1 0। अब ये जो 1 है आउटपुट में अवेलेबल होगा। अब आपने वापस 0 दिया तो क्या होगा, ये 0 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, ये 0 इधर आएगा और जो पहला 1 था ये वाला, अब ये आउटपुट में अवेलेबल होगा पहली बार। सो अब क्या है, डेटा 0 1 0 1। सो दिस विल बी द आउटपुट। सो इस तरीके से ये डेटा मूवमेंट होता है, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। और यही आपको एग्जाम में ऐसी फिगर बना के यही डेटा मूवमेंट दिखानी है। आपको डेटा इनपुट सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आप डेटा देना चाहते हो, 0 1 0 1 या 1 0 1 0, जो भी आप देना चाहते हो, और उसके बाद इस तरीके से ऑपरेट करके आपको दिखाना है। तो दिस द फर्स्ट वन। सेकंड कौन सा है, सीरियल इन पैरेलल आउट। आप इसमें और पहले वाले में कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। सीरियल इन पैरेलल आउट दोनों एक जैसे ही देखने में है। फर्क बता देता हूं क्या होगा। पहले में एक ही आउटपुट था, यहां पर 4 आउटपुट होंगे, क्योंकि 4 शिफ्ट रजिस्टर है तो डेटा 4 पैरेलल निकल सकता है। तो ये क्लॉक
सब में कॉमन। फिर डी ये हो गया इनपुट, और ये हो गया Q3, ये हो गया ST में जाएगा, ये हो गया Q2, ये इसमें जाएगा, ये हो गया Q1, ये इसमें जाएगा, और ये हो गया Q0। ये हो गया आउटपुट। ठीक है, अब एक आउटपुट नहीं होगा, इसमें 4 आउटपुट होंगे, तो ये भी एक आउटपुट होगा, ये भी एक आउटपुट होगा, ये भी एक आउटपुट होगा। तो ये होगा Q3 आउटपुट, Q2 आउटपुट, Q1 आउटपुट, और ये होगा Q0 आउटपुट। तो ऑपरेशन तो सेम रहा। तो Q3, Q2, Q1, Q0 आपने पहले भी लिखा है, तो ये Q3 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q0 है। नेक्स्ट स्टेज में यही है, थर्ड स्टेज में यही है, फोर्थ स्टेज में है, लेकिन हमारा आउटपुट यही है सिर्फ। यहाँ पर ये चारों के चारों मेरे आउटपुट है। तो ये डिफरेंस है सीरियल इन, पैरेलल आउट। आप दोनों में यूज कहाँ करेंगे? अब ये सीरियल इन सीरियल आउट कब यूज करते हैं? जब आपको बहुत एक हाई स्पीड डिवाइस हो और वो लोअर स्पीड डिवाइस से इंटरफेस कर रहा है, तो क्या होगा, आपको टेम्पररी डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो टेम्पररी जब आप डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इस तरह का एक शिफ्ट रजिस्टर बनाओगे। शिफ्ट रजिस्टर बनाओगे तो क्या होगा, वो जो डेटा आएगा वो 10 बिट में स्टोर करके रखेगा। 10 बिट में स्टोर हो गया, डेटा आपका बंद हो गया, तो क्या होगा, फिर वो एक एक करके डेटा बाहर भेजेगा। पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा। तो ये इसके लिए यूज करते हैं। सेकंड जो है सीरियल इन पैरेलल आउट, वो कहाँ यूज करते हैं? जब डेटा कंपेयर करना है कि जो पिछला डेटा था और अभी का डेटा, उसमें डिफरेंस क्या है। तो वो दोनों डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो आप इससे कर सकते हो। तो ये दोनों इसमें यूज होता है। थर्ड है पैरेलल इन पैरेलल आउट। सो पैरेलल इन पैरेलल आउट भी इजी है, डिफिकल्ट है पैरेलल इन सीरियल आउट। सो पैरेलल इन पैरेलल आउट कैसा होगा, ये भी 4 शिफ्ट रजिस्टर का ही बनाएंगे। So this will be the clock. अब पैरेलल है, मतलब डेटा भी पैरेलल आ सकते हैं और डेटा पैरेलल आउट भी हो सकता है। तो यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट। ये फर्स्ट इनपुट B1, ये Q1, ये सेकंड इनपुट Q2, Q3, सॉरी B2, Q2, B3, Q3, P4, Q4। तो ये D, ये Q, ये D, ये Q, ये D, ये Q, ये D, ये Q। तो ये हो गया पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये जो एक डेटा दोगे वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास आउटपुट में फर्स्ट साइकिल में अवेलेबल होगा। सो आप फिगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पैरेलल आउट सेम आएगा। पैरेलल इन सीरियल आउट वो रहने दो अभी। पैरेलल इन पैरेलल आउट, जो डेटा दोगे वही आउटपुट पे अवेलेबल होगा। आप सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर देखें तो 4 फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक सबको कॉमन, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। तो अगर 1010 डेटा लोगे तो पहला 0 एज्यूम किया है, अब 1 अवेलेबल है, तो ये यहाँ पर नया डेटा क्या आएगा, ये 0 इधर से मूव होके इधर चला गया, ये 1 यहाँ का यहाँ आ गया, वापस 0 आया, तो अब ये 0 इधर चला जाएगा Q3 में, ये 1 आ जाएगा Q2 में, और ये 0 आ जाएगा Q1 में। देन फोर्थ साइकिल में क्या होगा, अब ये 1 डेटा है तो 1 आ जाएगा Q1 में, पहले Q4 में चला जाएगा जो 0 था, 1 जो है Q3 में आ जाएगा, 0 Q2 में आ जाएगा, देन जो 1 है वो Q1 में आ जाएगा। सो इस तरीके से वो ऑपरेशन होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप से देखने की जरूरत नहीं है, जेके फ्लिप फ्लॉप से वो डीकॉन्फ़िगर करके ही बनाते हैं, तो वो आपको सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है, वो नहीं आता एग्जाम में कभी। तो यू कैन, यस सर समझ नहीं आया ये वाला लास्ट वाला।
फर्स्ट वाला यही वाला है जो मैंने इसमें करवाया, सीरियल इन सीरियल आउट, यही वाला करवाया वहां पे भी, कोई डिफरेंस नहीं है उसके और इसमें। ये तो कनेक्शन है। अब मेरे को ये डेटा देना है 1010, अभी कुछ एज्यूम नहीं किया यहाँ पर, डेटा सब एज्यूम जैसे जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये जीरो पहली क्लॉक साइकिल आएगी तो कहाँ पर आएगा, Q1 पर, तो क्लॉक साइकिल आई तो ये Q1 पर, ये जीरो यहाँ आ गया। नेक्स्ट इनपुट क्या अवेलेबल है 1, ये 1 जाएगा। अब ये जीरो कहाँ जाएगा, Q2 में जाएगा, और ये 1 कहाँ आएगा, Q1 में आएगा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में। तो ये जीरो Q2 में मूव कर गया, ये 1 Q1 में मूव कर गया, हर एक क्लॉक साइकिल पे ऑपरेट हो रहा है। अब तीसरा डेटा क्या है, जीरो, तो ये इनपुट में आ जाएगा जीरो। नाउ क्या होगा, ये जो जीरो अवेलेबल है G3 पर वो चला जाएगा Q3 पे, जो डेटा इनपुट अवेलेबल है D2 पे वो चला जाएगा Q2 पे, और जो D1 पे अवेलेबल जीरो है वो आ जाएगा Q1 पर। तो ये चला गया D3 वाला Q3 पर, D2 वाला चला गया Q2 पर, और D1 वाला आ गया Q1 पर। लास्ट डेटा दिया 1, अब ये 1 दिया तो अब क्या होगा, जो D4 पे अवेलेबल है वो Q4 पे चला जाएगा, तो वो अब ये जीरो आ गया Q4 पे। जो D3 पे अवेलेबल है वो आ जाएगा Q3 पे, जो D2 पे अवेलेबल है वो आ जाएगा Q2 पे, और जो D1 पे अवेलेबल है वो आ जाएगा Q1। तो ये आ गया शिफ्ट रजिस्टर, तो ये आ गया, पहला आउटपुट अवेलेबल हो गया। अब हर एक साइकिल पे आपको आउटपुट मिलेगा 0 1 0 1। अब पैरेलल में क्या होगा, सारे आउटपुट एक साथ मिल जाएंगे, 1 0 1 0 आपको एक साथ मिल जाएगा। यही डिफरेंस है सीरियल इन सीरियल आउट और सीरियल इन पैरेलल आउट। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप से नहीं पढ़ना है, वो जाने दो, सिर्फ इसको जेके फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप की तरह ही बनाया है, तो आप छोड़ सकते हो उसको। सीरियल इन पैरेलल आउट, सारे आउटपुट आपके एक साथ अवेलेबल होंगे, QA QB QC एंड QD। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। तो आप पैरेलल इन पैरेलल आउट, चारों इनपुट चारों आउटपुट। आप पैरेलल इन सीरियल आउट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पैरेलल इन सीरियल आउट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो यू नीड टू पे अटेंशन फॉर दैट थिंग। सो शिफ्ट रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। इसके डिफिकल्ट होता है डायग्राम, तो डायग्राम आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए इसलिए। फिर काउंटर्स पे आ जाएंगे सीधे, तो वो लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक, काउंटर्स। वंस काउंटर इज कंप्लीटेड you have completed the chapter number 3rd. So इस वीक में most probably 3rd chapter will be over. I will try to cover the 3rd chapter. So 4th and 5th will be remaining after. So 60%, 65% will be covered in this week. Okay. So attend your roll calls. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो बता देता हूँ। सारे फ्लिप फ्लॉप्स जेके SR DP। सर हाँ ब्रिजेश। सर फ्लिप फ्लॉप में सर ये जैसे जेके कन्वर्टर सर ये टी हो गया है क्या, जैसे मतलब जेके से सर डी हो गया क्या, या टी से सर डीएफ हो गया क्या, मतलब ये वो सब हो गया? कन्वर्जन आपके फ्लिप फ्लॉप आपका सिलेबस में नहीं है, कन्वर्जन होता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है सर लेकिन ओके सर, लेकिन सर पूछा हुआ क्वेश्चन है एक दो बार क्या। सर, एक दो बार पूछा हुआ है जेके कन्वर्ट टू टी मतलब फ्लिप फ्लॉप, तो ये सब सर पूछा हुआ है एक बार ये कौन से क्वेश्चन पेपर देखे में हुए पूछा हुआ है? सर 2000 सर 17 में पूछा हुआ है। 2017 में सिलेबस दूसरा था। ओके सर। ओके रविंद्र। यस सर। हर्षित। यस सर। मनीष। यस सर। ऋषभ। यस सर। विपुल। यस सर। जयशंकर प्रोजेक्ट। अभिषेक। यस Yes, sir. अविनाश। यस सर। राज। यस सर। अमोद। मणिरत्ना। यस सर। सुनीता। सोनाक्षी। Yes, sir. शिल्पी। Yes, sir. निधि। यस सर। आर्यन। अमित। रुमा।
बजरंग, यस सर। सोनू, यस सर। राजीव, यस सर। धनंजय, उमंग, यस सर। आशीष, Yes, sir. अंकित, अखिलेश, यस सर। चंदन, यस सर। भूमिका, Yes, sir. दिव्यांशु, यस सर। सोनू यादव, Yes, sir. गगन, यस सर। विनय, विनय, विराज, प्रेजेंट सर। यस सर। विनय सर। श्रवण, प्रेजेंट सर श्रवण। आशीष, यस सर। रोशन, प्रेजेंट सर। रिंकू, यस सर। विक्सी, प्रेजेंट सर। मनीष, यस सर। सैफ, ब्रिजेश, प्रेजेंट सर। रोहिणी, Yes, sir. गौरव, यस सर। अभिषेक, यस सर। अभिषेक तिवारी। अरमान अली, उदित, Present, sir. सुमन, प्रेजेंट सर। सौरभ, यस सर। पंकज, यस सर। ओम, ओम, राहुल, यस सर। आलोक, सदाशिव, पूर्णिमा, Yes, sir. शिबू, राहुल, रवि, प्रियंका, anyone who is left for attendance? सर राहुल कुमार प्रेजेंट है 47। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर आपसे। हाँ, Yes, बोलो। sir. Ruma Kumari. बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर Hello, sir. कंप्यूटर Priyanka Kumari. Sir Sunita. बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो भाई। ये सर बोल रहे हैं सर वैसे सर कंप्यूटर को सर हम कोई नाम देते हैं तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 1 में, ठीक है, और हाँ नंबरिंग वैल्यू को कर लेता है, लेकिन